Today we have understood the meaning of per capita income. Per capita income is also known as average income. It means that if there are 10 members in a family and all the 10 people are earning 1,000 rupees, then the total income of the family is 10,000 rupees and the average income of the family is 10,000 divided by 10 members of the family. So it becomes 1,000 each. And this is the idea of average income. All right. And we have discussed already about average income, that how it is a tool to understand the economic criteria or economic issues related to the topic of development. All right. We have understood about that the income as discussed by the World Development Report published by the World Bank, that about $10,052, close to something like that, is those countries earning more than $10,000 per annum are considered as rich countries, and those countries which are earning less than $955 per annum are considered as low income group, and India is falling in the low income group category. And one more thing is that in our country, there are few billionaires, there are few wealthy people as well. So it does not indicate that the entire population earns below $955. That's the average level of income of our country. So exactly, they do not point out to the individual earnings, and average is essential to at least have an idea related to the income of our country. So if it suggests that $955 or a little more than $955 is earned by an average Indian, then the entire country has a long way to go, and at least they should come close to the 10,000 mark, which is the earning of the rich income countries. And now we have also discussed about few other criteria, some other criteria of development. Some other criteria of development includes the literacy rate. Literacy. This thing we have already discussed today in the class. What is the importance of literacy? How literacy can change the mindset of the people, how it can convert an ordinary person into an efficient workforce of our country. And literate person can have a meaningful choice and decent lifestyle and understanding of various parameters, and the problems of our country can be solved by the literate person better than the illiterate person. That is why one objective of development is to have a higher and higher literacy rate. So this is one criteria. Another one is the net attendance. These two are connected with each other. Net attendance ratio. Literacy and attendance in the school, both are complementary. If people are attending the school, they are likely to become literate. Therefore, two of the criteria of development included as literacy rate as well as net attendance ratio. What is net attendance ratio? It is the total number of children of the certain age group. It may be 10 years, it may be 14 years, it may be 15 years. Your book specifies the age group of 14 to 15, which is of class 10th. This 14 and 15-year students of class 10th age group is mentioned in your textbook. It could be any age group. It can be 5-year child of class 1 up to 17-year student of class 12. So in any age group, whatever the total population of that particular age group, whether they are coming to school and attending the classes regularly or not, that is the ratio of persons of the age group and the number of persons who are attending the school. This ratio is net attendance ratio. All right, definition is mentioned in your book, page number 10, and you can note down the definition. And another criteria is
which is a little different. That is IMR. Can you type? Can you send me the reply? What is IMR? What is IMR? What does it stand for? Ayush says infant mortality rate. Very good. Let me wait for some other response. Aditya Ranjan also replies the same. So hopefully all the students know the full form of IMR, infant mortality rate. We have already discussed today in the class that a society, a country, a community, or any particular area must have the infant mortality rate to the minimum level, because normally children should not die. They come with some divine qualities of survival. When a baby is born, it is come with a divine quality to survive. It should not die. And the community, the elders, the parents, or anyone who is taking care of the baby must enable the safety, security, food of the baby and see that the baby survives up to at least 4 years, 5 years, 6 years. All right. And therefore, this criteria is taken as the status of development of a country. Infant mortality rate, countries with higher infant mortality rate are considered as poor countries. And the countries who have brought down their infant mortality rate, they are considered as developed or rich countries or wealthy countries. So these are the criteria which are already developed. Now we will discuss about some public facilities. These public facilities are meant for the welfare of the common people at large, not any particular person. Public facilities are not developed for a single person's need or desire. It is developed for the purpose of the entire community. So we remember some 20, 25 years ago when we were school-going children, we have found very few opportunities of public facilities. There was not toilet anywhere in the bus stand, and the condition of the train, the condition of the buses were horrible. All right. And supply of clean drinking water, then electrification, then electric facilities were very, very less at that time. Why it was such? Because our country did not felt that much necessity of electricity, clean drinking water, or toilet in public places, or the maintenance of the roads, maintenance of the transport system. We did not believe in such things, and we never understood that they are necessary for our life. We were more busy. We are more busy about temple, about our sanskar, about our culture, about any kind of other kind of discriminative and difference on the basis of some kind of communal feeling. We were actually understanding the ruling or understanding our progress in that line. But now we are changing our mindset, and this has happened because we have actually have a modern education. We have our revival of curriculum, revival of syllabus, where smaller things are also becoming essential in our life, instead of those communal or those any kind of other things which can discriminate and which can actually differentiate between the community. All right. So we have forgotten those communal feelings and discriminatory practices, and we have understood the real meaning of development. So public facilities includes the more and more amenities like roads, and then the drainage network, then the electrification, then the infrastructure like stadium, post office, bank. All these things are included as public facilities. Now, one question is mentioned in your book, that if a person living in a house wants a security guard, a person living in a community, in a village area, wants some security for the village, and other members of the village does not agree with the person who is thinking of a new security system where there will be a security guard, or there will be a gate, or there will be a fence around the village.
So unless the entire community agrees with this person, with his new idea, the development cannot be brought about. All right. Are you following me? If you are understanding this perspective, please respond yes or no. एक गांव है जहां कुछ लोगों को लग रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था थोड़ा गांव का सही होना चाहिए, उनको सिक्योरिटी गार्ड रखने का जरूरत है। लेकिन गांव के अधिकतर लोग को समझ भी नहीं आ रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड क्यों जरूरी है। गांव के अगर लोग नहीं चाहेंगे सिक्योरिटी गार्ड रखना, तो एक दो आदमी के चाहने से उस समय सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको अगर एक सिक्योरिटी गार्ड गांव के लिए अगर अरेंज करना है और एक दो आदमी केवल चाह रहे हैं, तो ये काफी नहीं होगा, वो गांव वैसा ही रह जाएगा। हमको लग रहा है ये एग्जाम्पल काफी है कि तुमको अब ये समझने के लिए कि जो डेवलपमेंट जो है, हाँ, डेवलपमेंट जो है कैसे कैसे जो है अफेक्टेड भी होता है, इन्फ्लुएंस्ड भी होता है। हाँ, Aman Singh says that audio is not coming, so it may be a network problem in your area. Otherwise, in my laptop, it suggests that there is some signal related to audio also. तो जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट वाला एक एग्जांपल है, यही है कि क्या हम अपने कंट्री में और ज्यादा से ज्यादा क्या सॉफ्टवेयर लाना चाहेंगे? सॉफ्टवेयर, क्या हम टेक्नोलॉजिकल सुपेरियरिटी चाहते हैं? तो क्या गांव के लोग टेक्नोलॉजिकल सुपेरियरिटी ला सकते हैं कि शहर के लोग? द अर्बन एरियाज विल बी टेक्नोलॉजिकली मोर सुपेरियर और द विलेज? Sushant Pandey says video is blur again. There, those problems are likely to affect your area's network. But here I am getting a very good reception. My audio is also clear. You must. Someone is abusing, so I have logged the meeting now. तो इधर जो है हम लोगों को थोड़ा सा डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव भी समझ में आ रहा है कि अगर सभी लोग चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए, तभी जो है डेवलपमेंट आएगा। अब मेरा यही क्वेश्चन है कि इंडिया को टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी अगर मान लो हासिल करना है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन इंडिया के अर्बन पॉपुलेशन का ज्यादा होगा कि विलेज पॉपुलेशन का? ये बताओ, विलेज का पॉपुलेशन जो रूरल पॉपुलेशन है उससे हमारे सुपेरियरिटी ज्यादा होंगे कि अर्बन? नो रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। हाँ, एक आंसर आया है कि एक जन बोल रहे हैं सुशांत पांडे इज अफर्मेटिव अबाउट अर्बन पॉपुलेशन, और वी ऑल्सो एग्री दैट द अर्बन पॉपुलेशन कैन। हाँ, शशांक शर्मा बोल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं डेवलपमेंट का। और अब जो है हम लोग एक सेंटेंस लिखे थे क्लास में कि मनी कैन नॉट बाई ऑल द थिंग्स विच इज नेसेसरी टू लिव वेल। हमारे पास पैसे है और बुक में एग्जाम्पल है कि क्या पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा हमको? पैसे अगर मेरे जेब में है तो क्या दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो जाएगा? हम एक एग्जाम्पल दिए थे कि दिल्ली में ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं। तो क्या दिल्ली में पैसे वाले लोग जो है वहां पे अपना सॉल्यूशन, वहां पे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट फिल्टर लगा सकते हैं? हाँ, घर घर में एयर फिल्टर लगा सकते हैं। क्या एयर फिल्टर लगाना मतलब पॉल्यूशन कम हो गया?
क्या पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो एक्चुअली विलेज एरिया में, कंट्री साइड में है, क्या वैसा एनवायरनमेंट उनको मिल जाएगा? हाँ, तो बहुत सारे अभी बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नो। आंसर जो है नो है। तो इसमें जो है हम लोग को समझना है कि जो पैसे से हमको जो है सब चीज नहीं मिलेगा अच्छे रहने के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट, डिफरेंट पर्सन्स विद डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट आल्सो एग्जिस्ट, ऑलराइट। तो बहुत सारे घर में अच्छे पैसे वाले लोग भी बेटी को जो है स्कूल नहीं भेजते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है परिवार में कि बहुत समृद्ध परिवार है और जो है सब एजुकेटेड भी है, पैसे वाले भी है, लेकिन जहां तक फीमेल या गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन है, कहीं ना कहीं उनके थॉट्स जो है थोड़ा बायस्ड हो जाते हैं कि लड़कियों को कहाँ तक पढ़ाए, कौन से स्कूल में पढ़ाए। ऐसे चॉइसेस जब आते हैं तो वो बॉयज के लिए अलग डिसीजन लेते हैं, गर्ल्स के लिए अलग। तो क्या ऐसे फैमिली भी होंगे जिनको हम डेवलप्ड मान ले, जो बेटियों को अच्छी शिक्षा देने में कहीं ना कहीं जो है अपना ओपिनियन को जो है रिजर्व रखते हैं? बेटियों के मामले में जैसे ही कुछ खर्चा की बात आ जाती है, बाहर भेजने की बात आ जाती है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हम अपना डेवलपमेंट को थोड़ा कटौती कर देते हैं और कहीं ना कहीं हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं। हम थोड़े पीछे हो जाते हैं, एडवांसमेंट में नहीं रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे चीज जो है डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज जो है वो हमको चेंज करना है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स है। और एग्जाम्पल है कि कैसे कोई हम लोग को जो है एक ये कर सकता है। बुक में लिखा हुआ है कि जो दवाई वगैरह है नकली मिलते हैं, नकली दवाई वगैरह मिलते हैं। जो नकली दवाई वगैरह मिल रहे हैं, तो क्या वो हम पैसे से जो है, एक पैसे वाले होते हुए भी हम क्या नकली दवाई खरीद के कुछ हम बीमार हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में अगर मिलावट हो रहा है, नकली दवाई बेची जा रही है, साग सब्जी में सुई लगा के अगर हमको जो है मंडी में बेचा जा रहा है, तो हम एक जगह जो है डेवलप तो हुए हैं पैसे के मामले में, लेकिन और बहुत सारे मामले में हम कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बैकवर्ड हो जा रहे हैं। जैसे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं है और मेरे पास सेफ्टी सिक्योरिटी या फेयर गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फेयर गुड्स एट फेयर प्राइसेस नहीं है, तो हम वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे यहाँ स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह से जो है अब एक और टॉपिक हम लोग लेंगे। कुछ तुम्हारे बुक जो एग्जाम्पल देता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला का कम है, हरियाणा का ज्यादा है। ठीक है, तुम बुक देखोगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी केरला का बहुत कम है, तो वहां लिटरेसी ज्यादा है। हरियाणा में लिटरेसी कम है तो आईएमआर ज्यादा हो गया है। हरियाणा का लिटरेसी केरला के कंपैरिजन में जो है कम है, तो वहां पे आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। लेकिन हरियाणा वाले ज्यादा अमीर है, ज्यादा पैसे वाले हैं। वो बहुत मेहनती है, खेत में काम करते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं, आर्मी में ज्वाइन करते हैं, पैसे बचा लेते हैं, जमीन खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो केरला के कंपैरिजन में हरियाणा में पैसे ज्यादा है लोगों के पास, लेकिन वो लिटरेसी में बैकवर्ड हो गए हैं और आईएमआर में भी जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी वो जो है थोड़ा पीछे है केरला के कंपैरिजन में। तो इस तरह से हम कंपेयर करके देखते हैं कि कोई फिक्स्ड हमको जो है फॉर्मूला या फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं मिलेगा लैंग्वेज डेवलपमेंट का, और वो वैरी करता है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। ठीक है, साउथ इंडिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेहतर है, उनके यहाँ राशन शॉप्स जो है बेटर ऑपरेट करते हैं। तो राशन दुकान जो है ऑपरेट अच्छे करते हैं, इस वजह से लोगों को जो है राशन दुकान से अनाज मिल जाता है। और गरीबों की भी जो है हेल्थ है, और उनके जो है ये हेल्थ मतलब, और उनका जो मेडिसिनल एक्सपेंसेस है वो थोड़ा कम है। हेल्थ अच्छे हो गए हैं तो उनको मेडिसिन के लिए जो है ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। वहाँ के पॉपुलेशन जो है
हेल्दी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, चूंकि उनको फेयर प्राइस में अनाज मिल जाता है और वो वेल मेंटेन्ड रहते हैं, तो इस वजह से वहां में थोड़ा डेवलपमेंट ज्यादा है। लेकिन थोड़ा बिहार और हरियाणा और मध्य प्रदेश अगर देखते हैं, तो यहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो उतना अभी भी अप टू डेट नहीं है। तो हमें ये पता चल जाए तो हम जरूर उसको सही कर ले, अप टू डेट कर ले। और पढ़ाई लिखाई करने से हमको कंपेयर करने मिलता है, और अपनी कमी भी पता चलता है, और दूसरे का भी प्रोग्रेस का जो है तरीका, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये हमें पता चल जाता है। ऑलराइट, तो ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट अभी हमने डिस्कस किया है कि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, अबाउट आवर वेलबींग, अबाउट आवर इमोशनल क्वेश्चन, अबाउट आवर इंटेलिजेंस, अबाउट आवर अफेक्शन विथ ईच अदर, अबाउट आवर केयर, about our joys, sorrows, all these things are included in the human development. All right. और ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशंस पब्लिश करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो यूएनडीपी पब्लिश करता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आता है, वो जो है कंट्री का इनकम भी देखता है, साथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, और साथ में कितना हम लोग लिटरेसी, कितने नंबर ऑफ ईयर्स हम स्कूल अटेंड करते हैं। कोई कंट्री 10 साल पढ़वाता है, कोई कंट्री 12 साल पढ़वाता है, कोई कंट्री 15 साल पढ़वाता है अपने बच्चों को। तो ये कंट्री टू कंट्री जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज है। जो ज्यादा पढ़वा रहा है वो ज्यादा पैसे खर्चे कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, नंबर ऑफ ईयर्स को जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं लिटरेसी में। कोई कोई कंट्री है जो कम ईयर में भी ज्यादा आउटपुट वो लोगों को मिल जाता है। उनके एजुकेशन सिस्टम का जो स्ट्रेटेजी है और उनके जो टेक्निक है, शायद वो हमसे बेहतर है। हो सकता है हम जो 10 साल में पढ़वाते हैं वो 9 साल में करवा देते हैं, तो 1 साल बचा लेता है। कोई कंट्री अपने यहाँ पे रिटायरमेंट एज 60 रखता है, कोई कंट्री 65 रखता है। तो ये कंट्री टू कंट्री जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट और अर्निंग और उसके जो लाइफ स्पैन में वो क्या क्या एक्टिविटी में एंगेज रहेगा, ये सारी चीजें तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की तरफ से प्रिपेयर किया जाता है। और एक एवरेज और एक जो है वहां से भी जो है आइडियल जो है स्ट्रेटेजी या आइडियल जो है उसके तरीके क्या हो सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, और क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें वो सजेस्ट करते हैं कंट्रीज को। तो ये हम लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट वाला भी जो है बुक में पेज नंबर 13 में जो है वो मिल जा रहा है रिपोर्ट। और उसमें पता चल रहा है इंडिया का रैंक 2016 में 131 था। तो इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया जो है काफी पीछे है, और हमसे आगे श्रीलंका दिख रहा है। लेकिन ये 2023 में चेंज हो गया होगा। अब श्रीलंका जो है काफी पीछे चला गया है, वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और कंट्री बिल्कुल ही जो है बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान बहुत क्राइसिस में, बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन कंट्री कितना बेहतर है, उनके कंट्री में सेफ्टी, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस और सारे एस्पेक्ट्स को लोग इंक्लूड कर लेते हैं। हाउ एम्पैथेटिक दे आर टुवर्ड्स, हाउ सेंसिटिव दे आर टुवर्ड्स देयर कम्युनिटी, नेबरहुड एंड द फैमिली। ये सारी चीजें को जो है वो असेस करते हैं। और इस तरह से जो है हम भी समझ रहे हैं कि हम लोग सुधर रहे हैं, कहाँ हमको थोड़ा और मेहनत करना है, कहाँ हमको और चेंजेस लाने हैं, ये हमको पता चलता है। अब एक टॉपिक हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे, वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं। उसमें
थोड़ा सा जो अंतर है इकोनॉमिक से वो हम बताएंगे, लेकिन उसको एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हम आज तरक्की करेंगे लेकिन भविष्य के बारे में भी जरूर सोचेंगे कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हम रिसोर्स रख रहे हैं, साफ एनवायरनमेंट, वाटर, मिनरल छोड़ रहे हैं कि नहीं, या सब कुछ आज ही खत्म कर दे रहे हैं। तो ये जो है ये ज्योग्राफी वाला है। अब जो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, हमें डेवलप्ड होना है, हमें डेवलप्ड होना है, हर हाल में डेवलप्ड होना है क्या, यहाँ क्वेश्चन है कि हम कितना डेवलपमेंट को अचीव करना चाहते हैं, कहाँ तक डेवलपमेंट को अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ क्या हमारा डेवलपमेंट के चलते जो हम रास्ता अपना रहे हैं, क्या वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है, क्या वो हमारे सवाल का आंसर देगा कि हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, पैसा खर्चा कर रहे हैं कि नहीं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि नहीं, लोगों की सेंसिटिविटी और अलर्टनेस और अवेयरनेस टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, टुवर्ड्स द कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, ये सारी चीजें जो है वो हम एक क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स में जानना चाहते हैं। तो एक सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग जान रहे हैं वाटर इज एसेंशियल। ठीक है, हमको वाटर बहुत जरूरी है, हमको डेवलप्ड होना है तो हमको नहाना है, फेयर दिखना है, हमको जो है अपने वाटर को जो है आरओ पानी पीना है, हमारे हेल्थ को हमको इम्प्रूव करना है। क्या इतना हमारे पास जो है अंडरग्राउंड वाटर, रेन वाटर, फ्रेश वाटर है कि वो हमको हर हाल में डेवलप्ड कंडीशन प्रोवाइड करेगा? पानी ही अगर खत्म हो गया तब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है। एक एरिया का पानी खत्म हो जा रहा है क्योंकि हम उसको एक्सेसिव जो है पंपिंग करके जो है ट्यूबवेल से, पंप से, मोटर से उसको बाहर निकाल ले रहे हैं, उसको बोतल में जो है कोल्ड ड्रिंक्स बना ले रहे हैं, उसको जो है तरह तरह से जो है मल्टीपल यूजेस ऑफ वाटर, मल्टीपल यूजेस ऑफ वाटर जो है इरिगेशन, पावर जनरेशन, नेविगेशन, टूरिज्म, फिशिंग, इस तरह से जो है हम पानी यूज कर रहे हैं और हम अपने आप को तो डेवलप मान ले रहे हैं। लेकिन पानी क्या हम इतना इतना लग्जरियसली हम क्या पानी फ्यूचर में भी यूज कर पाएंगे? तो ये क्वेश्चन है, क्या फ्यूचर में भी हमको इतना पानी मिलने वाला है, और नहीं मिलेगा तो हमारे लाइफ पर क्या असर होगा? यहाँ पे है क्वेश्चन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का, कि अगर पानी ही नहीं रहेगा, अगर सॉयल ही नहीं रहेगा, अगर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा, तो हमारे जो किताबी जो हमारे लिए जो ज्ञान है या बुकिश नॉलेज जो हमको बता रहा है अभी तक डेवलपमेंट का, तो रियल डेवलपमेंट हमको कैसे मिलना है? तो कहीं ना कहीं हम जो है पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल और कोल, ये सब फॉसिल फ्यूल को भी एक्सेसिव यूज करके जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिया, हर घर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे दिया, हर घर को जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज करना सिखा दिया, और उनको हम ये उनको फील करा दिए कि भाई देखो आप लोग कितने बेहतर जिंदगी जी रहे हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई है, स्टेटस स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया है। लेकिन किसकी कीमत पर? एक नेचुरल रिसोर्स जो कि हम तेल खत्म कर दे रहे हैं, हम जो है वी आर डिप्लीटिंग, वी आर एग्जॉस्टिंग आवर वैल्यूएबल पेट्रोलियम एंड कोल एंड अदर नेचुरल गैस एट द एक्सपेंस ऑफ आवर, at the expense of our quality of life. We want to achieve higher quality of life, but we are forgetting that we are overusing those resources, which will not be available till the next few 100 years or 1,000 years. Because we will get back petroleum, but it will take another 100 or 1,000 years to recreate or become renew. तो ये सारी चीजें जो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वाला टॉपिक्स में जो है हम लोग को ये करना है। तो एक बुक में एग्जांपल है कि ये जो है अंडरग्राउंड वाटर का यूज जो है वो बढ़ गया है, लोगों को सिखा दिए हैं पानी को मोटर से निकालना है, खेत में सिंचाई करना है, अनाज ज्यादा उगेगा और ज्यादा प्रॉफिट होगा और ज्यादा खुशहाली आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जा रहे हैं कि पानी इतना अवेलेबल नहीं है।
तो वाटर क्राइसिस के लिए हमें तैयार रहना है। हम अपने सारे डेवलपमेंट को जो है फिर रीओरिएंट करना होगा, हमको फिर से जो है कुछ नया उपाय सोचना होगा कि इतना पानी जो हम खर्चा कर दे रहे हैं, इतना खर्चीला जीवन को हम कहाँ तक आगे जो है जारी करेंगे। तो ये हो गया है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। और एक वर्ड है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर, वी हैव not inherited the world from our forefathers or forefathers। ये हमको ऐसा, मेरा भ्रम है, हम लोगों का भ्रम है कि हम जन्म ले लिए हैं तो जो कुछ भी मेरे पूर्वजों का है वो मेरा अब हो गया है। लेकिन यहाँ ये कह रहा है नहीं, हम अपने पूर्वज से कुछ भी इनहेरिट नहीं कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर वाले जनरेशन से ये बोरो करके आज यूज कर रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी से हम ये उधार लेके अपनी इस जिंदगी को जी रहे हैं। ये है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का समरी। इन बुक वन सेंटेंस इज देयर, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो हम हिंदी में यही बात हम तुमको बोल रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के लिए ये बुक में एक बहुत अच्छे सेंटेंस है जिसमें ये लिखा गया है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स। अभी हमको घर जमीन और हमको जो भी एनवायरनमेंट मिला हुआ है, ये हमारे पूर्वज ने हमारे लिए छोड़ दिया, इतना इसलिए आज हम व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा रीओरिएंटेड मैनर में लिखा गया, थोड़ा सा इसको बदल के लिखा गया है कि ये सारी चीजें हम लोग कर्ज के रूप में अपने भविष्य के जनरेशन से, अगली पीढ़ी से हम ये कर्ज के रूप में लिए हैं। और इस जिंदगी में हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि मेरे ऊपर ये कर्ज जो है वो हम चुका तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये कर्ज को जो है बढ़ाए नहीं। हम कुछ ऐसी हरकतें, ऐसे कोई काम ना करें जिससे आने वाली पीढ़ी का जीना हमसे भी ज्यादा दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा या नामुमकिन हो जाएगा। तो उससे वक्त रहते अगर हम जो है हम चेंज हो जाए, हम थोड़े अपने सुख सुविधा को थोड़ा कम कर ले, अपनी जनसंख्या को थोड़ा कम कर ले, थोड़ा पेड़ पौधे लगा ले, थोड़ा सा रिहेबिलिटेट कर ले, लोगों को जो खराब स्थिति में रहते हैं उनको अच्छे जगह में उनको भी रहने दे, उनको भी हम लोग जो है इस प्लेनेट में अच्छाई है और ये अच्छाई उनको जो है उनको बिलीव हो, ये सारी चीजें जो है हम अगर रहते जीवन रहते कर ले तो अच्छा रहेगा। और यही है टॉपिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। हमें हर चीज को जो है अपने फायदे के लिए अगर हम सोच रहे हैं तो हम गलत है, हर जगह में हम प्रॉफिट मेकिंग करना चाहते हैं तो हम गलत है। ठीक है, तो यही हो गया आज का टॉपिक। और ऑलमोस्ट जो है इट इज कंपैरेटिवली लास्ट पेज है, पेज नंबर 16, जो है मेनली सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वही कह रहा है कि प्लैनेट रहेगा तो हम रहेंगे और हमारा फ्यूचर भी हमसे जो है सवाल करेगा कि आप लोग अपने समय में रहते वक्त रहते क्यों नहीं कोई जो है ठोस कदम उठाए। तो आज अर्थ समिट होता है, एजेंडा 21 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े हैं, वर्ल्ड में मीटिंग होता है। और आज हम लोग जो है कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम लोग जो है बहुत सारे एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। अब ये डिस्कनेक्ट होने वाला है। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, आई एम गोइंग टू एंड माय क्लास।